हमारी खुद की पहचान ही उन्होंने हमसे छीन ली। भारत का रोमन एम्पायर के साथ बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड चलता था। ट्रेड का वॉल्यूम इतना बड़ा था कि देयर केम अ टाइम व्हेन ऑल द स्टॉक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन रोमन एम्पायर एग्जॉस्टेड। उनके पास बचा ही नहीं कुछ, सब इधर आ गया। सब इधर आ गया। तो भारत को जो बोलते हैं सोने की चिड़िया, तो ऐसे ही नहीं बोलते। When the British came to India in the beginning of 17th century, they were deeply impressed. They also realized that Sanskrit is the world's oldest language. They also found that Sanskrit has great similarity with many most of the European languages. And many of them also acknowledged it. European civilization was born on the banks of the Ganges. Okay. तो गंगा नदी के किनारे यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। बैंकिंग स्टार्टेड इन यूरोप, इन इटली। Why did it originate? Because they were the first to accept this zero number system. Oh my God. प्लास्टिक सर्जरी का भी तो हमारा वो पुणे में एक कुम्हार था, उसके यहाँ का जो स्किन था, वो स्किन उसने नीचे खींच लिया और वो स्किन के सहारे उसने उसकी नाक बना ली। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने ये देखा, वहाँ से वो लंदन में प्रकाशित हो गए। वहाँ पे किसी डॉक्टर ने उसके आधार पे उसने ऐसी सर्जरी लंदन में की और उसने नाम दिया प्लास्टिक सर्जरी। और तब से पूरी दुनिया को ज्ञान हो गया है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। बेस्ट वे टू कॉलोनाइज अ कंट्री इज टू फिनिश देम कल्चरली। दैट्स राइट। और ये सब करने के लिए उन्होंने दे डिसाइडेड टू अटैक 2 of our biggest strengths. One was education. So Gurukul system of education was our great strength. They created so many fault lines. North versus South, Hindi versus Tamil, upper caste versus lower caste. Completely fake story, fake theory, but they created it and they convinced our own people also. And on that basis only all these fights in our country are still persisting. आपकी किताब लिखते समय कहाँ से सारी सर्चेस करते हो? You have to first figure out the larger, broader areas. That knowledge is one area, economics is one area, universal human values is another area, language and culture and civilization is another area. Under each head, you have to dig deep for sources, for credible, reliable sources. Then you have to pick up facts from there, and then you have to create a complete narrative. Namaste Abhijit ji, thank you so much for being back on the podcast. Namaste, and I'm back in a very short time, so yeah. enjoying it. नहीं सर, हमारा लास्ट एपिसोड भी बहुत अच्छा गया था. I think viewers also really enjoyed it and resonated with whatever you were saying. Absolutely. Which is the most important thing. That is the most important thing. Yes. And अभी आपकी किताब आई है भारत दैट इज इंडिया. Yes. अभी हम कल वहाँ शब्दोत्सव पे भी मिले थे, जहाँ पे एक उसका पॉइंट था कि जो मकौले वे ऑफ थिंकिंग है उसको हमें छोड़ना है और विकसित भारत की टुवर्ड्स देखना है, जो उसका एक टॉपिक था. आपकी भी किताब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है, रिक्लेमिंग आवर सिविलाइजेशन, आवर रूट्स. Absolutely. और आपकी किताब का नाम है भारत दैट इज़ इंडिया. तो ये काफ़ी एक डिबेटेड टॉपिक भी है लास्ट फ्यू ईयर्स में, भारत और इंडिया का भी. मैं पहले आपसे ही जानना चाहूँगा सर, ये दोनों में फ़र्क क्या है? Actually, it's all about what is our real identity. So, I believe our real identity is Bharat. It is not India. Okay. India is a name which foreigners have given us. Okay. Because of various reasons. But प्राचीन काल से हमारे देश में हम अपने देश को भारतवर्ष के नाम से जानते थे. तो भारत यही हमारी पहचान है. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है इंडिया दैट इज भारत जी, विच आई फील शुड बी फ्लिप्ड टू भारत दैट इज इंडिया, बिकॉज वी आर भारत. And we are mentioning India just in passing because the world is now familiar with that word. Recognizes That's us. fine. But we should be proud of who we are. And for that we should call ourselves Bharat. I think that is very important. Because कई बार ऐसा लगता है कि इसमें क्या रखा है, मतलब छोटी छोटी बातों पर. ये छोटी बात नहीं है. हम आपको किस नाम से पहचानते हैं, हमारी पहचान क्या है, जो जब तक हम वी आर नॉट प्राउड अबाउट इट एंड वी डोंट टेल द वर्ल्ड विद प्राइड दैट वी आर भारत, then that energy and that strength and confidence will not come. So I think that is very, very important. And Bharat comes from the Bharata King Bharat, right? Correct. Okay, I King mean, Bharat. King Bharat of Puru Vansh is the reason. Some others say that Bharat comes from Jain tradition also.
Oh, is So it? whatever it is, I mean, we are all Indians. So whether it comes from Puru Wherever. tradition or Jain tradition doesn't matter. It has come from this. It comes from this soil. Soil. That is most important. So Sir, in this, someone was debating, and I heard that debate कि उन्होंने भी यही जवाब बताया था कि हमें हमारी जो हमने जो नाम दिया हुआ है जिससे हम खुद को पहचानते थे वो हमें दुनिया को बताना चाहिए. बिल्कुल. तो किसी ने उस पर क्वेश्चन करा था कि जो नाम हिंदू है वो भी बाहर से आया हुआ नाम है. क्या ये सच बात है? एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि बिकॉज पर्शियंस couldn't pronounce एस, स है ही नहीं उनकी भाषा में, तो स को वो ह बोलते हैं. अच्छा. तो बिकॉज दे couldn't pronounce सिंधु, दे said हिंदू, and the name Hindu came from the river Sindhu. That may be right. I mean, that in all probability it is right. But how does it change anything? I mean, Of course. Yeah. इसमें आपने बात करी सर कि हाउ वी लॉस्ट आवर आइडेंटिटी, कि जो जिस तरीके से जिन चीज़ों के लिए हमें जाना जाता था, अगेन वही मैकॉले कि उसकी कल्चरली ख़त्म कर दो इनको, एंड विच इज़ द best way to colonize a country is to finish them culturally. That's right. How do you think this started for Bharat? That is a very interesting story. When the British came to India in the beginning of 17th century, their idea was to trade and make money, because everybody knew that India is a rich country and trading with India would be profitable. So they formed a company called East India Company, came to Bharat, and when they studied what is Indian culture, what is Indian civilization, they were deeply impressed in the beginning. And many of them have mentioned very high praise about Indian tradition. They also realized that Sanskrit is the world's oldest language, and Rigveda is the world's oldest literature. And they also found that Sanskrit has great similarity with many most of the European languages. And that similarity is not just superficial, but it is structural. Okay. And they ultimately, in their mind, realized that most of the European languages have emerged from Sanskrit. And many of them also acknowledged it. Like there was a French philosopher called Voltaire. So he said that European civilization was born on the banks of the Ganges. Okay. तो गंगा नदी के किनारे यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, ऐसा उन्होंने लिखा है, बोला है. कई लोगों ने इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय संस्कृति की प्रेज की है. जैसे शाकुंतल जो कालिदास का काव्य है, उसका भाषांतर किया एक विलियम जोन्स करके एक जज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. तो उन्होंने अंग्रेज़ी में उसका भाषांतर किया, उससे वो जर्मन में भाषांतरित हुआ. और एक जर्मन कवि था गटे, तो वो पढ़ के इतना खुश हो गया कि वो शाकुंतल को सर पे उठा के नाचने लगा. एंड ही सेड दैट व्हेनेवर यू से शकुंतला एवरीथिंग इज सेड. अच्छा. So to that extent he was really impressed and he was so overjoyed to read that text. So ऐसा प्रभाव भारत का पूरे यूरोप में उस वक्त हो गया था. But when they won the Battle of Plassey in 1757, then they realized that now we can rule this country. So their ambition now moved from economic to political. And once they realized that we can rule this country, तो भारत की सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में जो उन्होंने ही खुद बोला था, वो बातें उनके लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो गई. क्योंकि अपनी गुलामों की भाषा से हमारी भाषा निर्माण हुई है, ये कैसे मानेंगे? हमारे गुलामों की सभ्यता इतनी श्रेष्ठ है, ये कैसे मानेंगे? तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ये जो इम्प्रेशन है पूरे यूरोप में, उसको ख़त्म करना है. And they also realized, they were very clever, so they also realized that to rule such a big country like India, it's not possible only by military might, because England is situated thousands of kilometers away. So they said that we should destroy their self-confidence. We should destroy their self-respect. And once that is done, they will follow us like sheep. And then they will
convince themselves that British rule is the God's gift for our country. So that was their plan. And how successful they were, we can see all around us, because even today in our country, there are people who believe that we learnt everything from the British and from the West. So they were very, very successful in that plan. और ये सब करने के लिए उन्होंने they decided to attack two of our biggest strengths. One was education. Yeah. So Gurukul system of education was our great strength. So that job was taken up by Macaulay. So he said that we will destroy these Gurukuls and we will impose English medium on these people, and we'll create a class of people who will be Indian only in color, but in their mentality, in their mindset, in their thinking, they will be British. And they will act as a kind of a हमारे और इस कंट्री के लोगों के बीच में एक ब्रिज के रूप में वो काम करेंगे, और ऑन आवर बिहाफ दे विल रूल दिस एंटायर कंट्री. तो वो उनका मकसद था. और दूसरी हमारी स्ट्रेंथ थी इतिहास. तो इतिहास को ख़त्म करने का काम दो लोगों ने किया. एक थे जेम्स मिल, तो वो स्कॉटिश थे. वो कभी भी भारत में आए नहीं. अच्छा. कभी भी नहीं. उनको कोई भारतीय भाषा आती नहीं थी. लेकिन उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके 6 उसके खंड लिखे, 6 किताबें पुस्तकें लिखी, और बहुत गलत तरीके से भारत का प्रोजेक्शन किया उसमें. मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें कही. अच्छा. और पूरा इमेज जो भारत का था वो डिस्ट्रॉय कर दिया. और इस तरह से उन पुस्तकों को प्रस्थापित किया गया कि भारत के बारे में आपको अगर कुछ जानना है तो पहले वो पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेगी आपको. अच्छा. तो इस तरह से उसको मार्केट करा गया. तो एवरीबडी हु वांटेड टू नो अबाउट इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स, एंड दे came with a certain mindset about India, that this is a country of backward people, superstitious, snake charmers, superstitious people, poor people. It was never a country. That kind of image about India was created. And the second one was Max Muller, who proposed a very fake theory called Aryan invasion theory. तो उसने कहा कि संस्कृत भाषा अच्छी है, जो हमने बोला वो सही है, लेकिन ये भाषा भारतीय लोगों ने निर्माण नहीं की है. इसका निर्माण जो है वो गोरे लोगों ने किया है, जो पश्चिम से भारत में आए. तो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड यूरेशिया टुवर्ड्स द साउथ ऑफ रशिया. सो वहाँ से वाइट स्किन्ड पीपल विथ ब्लू आइज एंड गोल्डन हेयर, दे केम टू इंडिया एंड दे क्रिएटेड वैदिक सिविलाइजेशन एंड संस्कृत लैंग्वेज. So the praise that they had expressed about Sanskrit and Vedas, they just turned it around, saying that it was all created by white people coming from the West. So that is how they completely destroyed our self-respect. They destroyed हमारी खुद की पहचान ही उन्होंने हमसे छीन ली. And also this Aryan invasion theory also created such a big divide within the country. Exactly. Between the North India and the South India. Exactly. They created so many fault lines. Like North versus South, Hindi versus Tamil, upper caste versus lower caste. Because they said that these Europeans who came from the West, they became the upper caste. And the Aboriginal local people, they became the lower caste. So it's completely fake story, fake theory, but they created it, and they convinced our own people also. Yeah. And on that basis only, all these fights in our country are still persisting. Yeah, still. It's still one of the most debated topics. Absolutely. Even on podcasts, even on interviews, on platforms. This Aryan invasion theory, and I have only discussed with so many people, I would want to know your take also on this. That what... if someone today just asks me, or any person who's watching this podcast, ki, you are not the original people from Bharat and whatever, ki itne saalon pehle ye log aaye aur ye sab karke gaye, what should be the correct answer to that? What are your thoughts on this? Because I'm sure you must have done deep research, because this is a very big part of our identity. Actually, in my book Asatyameva Jayate, I have written a chapter on Aryan invasion theory. मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको बताता हूँ कि इस थ्योरी के लिए एक भी प्रमाण नहीं है. मतलब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए देयर इज नॉट इवन सिंगल एविडेंस टू प्रूव इट, बट टू डिस्प्रूव इट देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस. अब हम देखते हैं. तो एक पहली तो बात यह है कि दे सेड दैट आर्यंस केम इन 1500 BCE. Okay. And Rigveda was written in 1200 BCE.
तो 300 साल के बाद जो लिखा गया उसमें कुछ ना कुछ तो मेमोरीज आनी चाहिए थी। हाँ कि हम बाहर से आए तो यहाँ आने के बाद हमको सब अलग दिखाई दिया। हाँ, सही बात है। यहाँ के लोगों से हमारे झगड़े हो गए तो बड़ी लड़ाई हो गई, वॉर हो गया। नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट anything like this is mentioned in Rigveda. Rigveda only speaks about the region between Ganga on the east and Sindhu on the west. इसके बीच में जो जियोग्राफी है सिर्फ उसी की बात ऋग्वेदा करता है। Nothing about anything about beyond Sindhu is mentioned in Rigveda. They don't mention, Rigveda doesn't mention any of animals, flora, fauna, which doesn't belong to India. Okay. So another big point है। ये तो होना चाहिए था। दूसरा एक पॉइंट ऐसा है कि ये अगर हज़ारों किलोमीटर आए, चैरियट्स में आए, ऐसा बोलते हैं, घोड़ों पे बैठ के आए, चैरियट्स में बैठ के आए, तो ये पूरे रास्ते में कहीं पर भी उन्होंने भारत जैसी सभ्यता क्यों नहीं बनाई? तो भारत में ही आके क्यों बनाई? ये दूसरा पॉइंट है। ये अगर वहाँ से चलते हुए आए, पहले सेंट्रल एशिया में आए, ईरान में आए, फिर भारत में आए, फिर भारत में आने के बाद आगे क्यों नहीं गए? फिर भारत में ही क्यों बस गए? सही तो बात है। ऐसे कई सवाल उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं। दूसरी एक बात ऐसी है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसे हम सिंधु सरस्वती संस्कृति बोलते हैं, तो उस संस्कृति को इन लोगों ने आके नष्ट किया, ऐसा बोला जाता है। उसका विध्वंस करके उन लोगों को दक्षिण की तरफ उन्होंने धकेल दिया। तो उस संस्कृति का जो उत्खनन है, उसकी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, साइट्स है, उसमें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ, कोई लोगों को मारा गया, शहरों को जलाया गया। इस तरह का कोई भी प्रमाण वहाँ पे नहीं मिलता है। तो बिल्कुल निचली स्तर से ऊपर तक जब हम लेवल्स विच करस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, देयर इज कंप्लीट कंसिस्टेंसी। तो बीच में आके अगर कुछ लोगों ने पूरी तरह से उनकी संस्कृति ख़त्म कर दी, उनकी भाषा ख़त्म कर दी और एक नई भाषा उनको सिखाई, एक नई संस्कृति उनको सिखाई, एक नई संस्कृति का निर्माण किया, तो उसके चिन्ह उन लेवल्स में दिखने चाहिए थे ना। वो चेंज जो है वो चेंज ग्रेजुअली दिखना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। बिल्कुल करीब 7-8 हज़ार साल से भारत में वही सभ्यता वास कर रही है। मतलब वो जो उत्खनन के जो साइट्स है, वहाँ पे कई वैदिक राइट्स, जिसको हम बोलते हैं यज्ञ वेदी वहाँ पे दिखी है। वहाँ पे कई लोग, महिलाओं के पुतले मिले हैं कि जिनकी मांगों में सिंदूर भरा है। हाँ। तो आज भी हमारे भारत की महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती है। तो वही संस्कृति, वही सभ्यता चलती हजारों सालों से चलती आ रही है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। एक और विषय है कि वो जो सभ्यता थी, सिंधु सरस्वती संस्कृति, वो 20 लाख किलोमीटर पर फैली हुई एक सभ्यता थी, स्क्वायर किलोमीटर्स, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, and it had a population of 50 lakhs at that time, which was very dense population by the standards of that era. And Eurasia was a very sparsely populated region. वहाँ पे population बहुत कम था और बहुत कम लोग वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ से कुछ लोग उठ के आए और उन्होंने ये इतनी जो प्रगत सभ्यता थी, वहाँ के लोगों की भाषा बदल दी, वहाँ के लोगों की संस्कृति बदल दी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब सही बात है। अगर आप लॉजिक भी लगाओगे तो नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे कई सारे विषय है कि जिनसे हम बोल सकते हैं कि एक सरासर गलत है। उसके आगे जाके आप जेनेटिकल एविडेंस देखोगे तो कई सारे, जैसे स्टीफन ओपनहाइमर करके एक जेनेटिसिस्ट है, उन्होंने बोला है कि एक M17 करके मार्कर होता है जीन्स में, दैट इज सपोज टू बी अ मार्कर विच आइडेंटिफाइज पीपल हु स्पीक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ओके, मतलब पीपल, क्या होता है? M17 is a marker in genetic marker which is common to all the people who speak Indo-European languages. तो उन्होंने ये, through his research he has found out that this genetic marker was first created, which first appeared in India 51,000 years ago. And then from here it went to Central Asia,
From Central Asia, it went to Eastern Europe, and from Eastern Europe, it went to Western Europe. Oh, so interesting. So that is the research which a geneticist, like very very well known, renowned geneticist like Stephen Oppenheimer has said. 51,000 years ago. 51,000 years ago. दूसरा एक मार्कर है R1A1, जीन्स का एक कैटेगरी है. That is again supposed to be an identification of people who speak Indo-European languages. Okay. Again, that has been found that it was first evolved in India some 16,000 years ago. I don't remember the name of the scientist, but in my book it is mentioned. So, and then it moved towards the West. So, any discipline of knowledge you take, there you will find that there are enough evidences to suggest that people moved from India towards the West and not the other way around. तो ये सरासर गलत थ्योरी खड़ी कर दी है और केवल उनके स्वार्थ के लिए उन्होंने की है कि उनको यही करना था कि भारत की सभ्यता का जो महत्व उन्होंने ही बढ़ाया था दुनिया के सामने, उसको उनको खत्म करना था. और वही हमारे हिस्टोरियंस ने उसको और प्रोपेगेट करते वो जाते हैं. एक बहुत ही खतरनाक दर्दनाक कहानी है, ऐसा मैं बोलूँगा कि भारत स्वतंत्र होने के बाद तो इसमें बदलाव आना चाहिए था. सही बात है. लेकिन बदलाव तो आया नहीं, बल्कि और जोर शोर से ये थ्योरी को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि पूरा जो हिस्ट्री कल्चर ये जो सेक्टर्स थे वो पूरे लेफ्टिस्ट के हाथों में चले गए और लेफ्टिस्ट को यही नैरेटिव आगे बढ़ाना था. सही बात है. तो उन्होंने वो आगे बढ़ाया. सर, आपने एक बात करी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीज़ें शुरू करी. क्या इससे पहले जब हमारे ऊपर मुग़ल रूल कह लो एरियाज़ में क्या उन्होंने भी ये करा या उन्होंने ऐसे सिविलाइजेशनली या कल्चरली हमें ख़त्म करने की कोशिश नहीं करी? उनका कैसा था कि उनके जो रास्ते थे वो वायलेंस के रूट से जाते बारबेरिक थे, वायलेंट थे. तो उन्होंने हमारे मंदिर तोड़ने की कोशिश की. उनका भी मकसद वही था कि इन लोगों को इनकी जगह दिखाई जाए कि आपके मंदिर वगैरह हम जब मर्जी तोड़ सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो. आपके भगवान भी अब खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं. तो ये लोगों को दिखाना था, इसलिए उन्होंने भी मंदिर तोड़े. इसके अलावा उनका धर्म भी ये कहता है कि मंदिरों को तोड़ना चाहिए, मूर्तियों को तोड़ना चाहिए. तो अपना धर्म पालने के लिए भी उन्होंने वो किया. बिल्कुल. तो उनके रास्ते अलग थे, लेकिन लोगों की उनके लोगों के दिल में अपनी सभ्यता के बारे में एक हीनता की भावना पैदा करना, ये उनका स्ट्रैटेजी नहीं था. ये ब्रिटिशों का स्ट्रैटेजी. ब्रिटिश लोग बहुत चालाक थे. उनको ये पता था कि ये सब हिंसा वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है. लोगों के मन में ही अगर हम बदलाव लाएंगे तो लोग खुद ही अपने संस्कृति को कम देखना शुरू करेंगे, कम सोचना शुरू करेंगे, हीनत्व की भावना आ जाएगी. तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं. अभी भी वेस्टर्न आइडियाज कूल लगते हैं. एग्जैक्टली. मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जैसे डीएनए में ही आ जाती है. आप बच्चों को, घर के बच्चों को अगर आप एक फ़ोन दे दो, वो ज़्यादा अट्रैक्ट वहीं की चीज़ों से होंगे. आज भी क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं पता. करेक्ट. लेकिन आप उनको एक जनरली कह रहा हूँ, आप उनको धोती दे दो और आप उनको जीन्स दे दो. ये नहीं कह रहा, हम सब भी जीन्स पहनते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट उसी चीज़ से होंगे जो बाहर से आई हुई है. क्योंकि क्या है कि स्ट्रैटेजी ये है, कई सालों से ये स्ट्रैटेजी यूज़ में आई है कि अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, अपनी सिविलाइजेशन के बारे में डिसअफेक्शन पैदा करो लोगों के मन में. मॉडर्निटी इज इक्वेटेड विथ हिटिंग योर ट्रेडिशन. अपनी परंपराओं को कम लेखना, इसी का मतलब मॉडर्निटी है. ये हमें सिखाया गया है. तो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए हम अपनी परंपराओं की चेष्टा करते हैं. मतलब हम अपनी संस्कृति को कम लेखते हैं. सही बात है. तो ये जो हमारे मन में इम्प्लांट किया गया है कई सालों से, मतलब ये ब्रिटिशों ने काम शुरू किया करीब करीब 1830 में, तो 200 साल हो गए. कम्युनिस्टों ने ये काम शुरू किया करीब करीब 1920-1925 में, तो उसको 100 साल हो गए. तो 200 साल से जो लोग ये काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपने मन में बैठ गया है. सही बात. इसीलिए हम कॉलोनियलिज्म से तो छूट गए, लेकिन कॉलोनियलिटी जिसे बोलते हैं वो अभी भी हमारे अंदर मौजूद है. सर, इस किताब में आपने इंडिया को फर्स्ट नॉलेज सोसाइटी बुलाया है. मैं चाहूँगा आप
व्यूअर्स को ऐसे इंस्टेंसेस या ऐसे एग्जाम्पल्स दो जिससे इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि हाउ वी वर द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉलेज सोसाइटी इन एक्चुअलिटी. इसके तो कई सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ. आई कैन कीप ऑन टॉकिंग. हाँ, बट मैंने ये पूछा भी क्योंकि जब मैं आपके बुक लॉन्च पे आया था तब आपने इसकी कुछ बात करी थी और मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी. मैंने कहा पीपल शुड नो अबाउट दिस. एक्चुअली पहले मैं ये बोलूँगा कि भारत दुनिया की सबसे पहली नॉलेज सोसाइटी क्यों बना. इसका प्रमुख कारण ये है कि हमने नॉलेज का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया. स्पिरिचुअल नॉलेज एंड सेक्युलर नॉलेज ऐसा डिवीजन नहीं किया जो यूरोप ने किया. यूरोप का प्रोग्रेस जो है उसका आधार यही है कि उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज और सेक्युलर नॉलेज ये अलग कर दिया. उसका कारण था क्योंकि वहाँ उनका जो स्पिरिचुअलिटी था वो उसका आधार क्रिश्चियनिटी के ऊपर था पूरा. और क्रिश्चियनिटी का ये कहना है कि आपको एक ईश्वर, एक ग्रंथ और एक धर्म और एक प्रेषित, इनकी बातें 100% आपको मानना ही है. उसके ऊपर आपको विश्वास रखना ही है. आपने चौथा पॉइंट क्या बोला सर? ईश्वर, प्रेषित. प्रेषित प्रेषित माने? प्रेषित मीन्स जीसस क्राइस्ट. अच्छा, ओके. तो that there is a compulsion that you must believe in what they say, what Bible says, what Jesus says, or what church says. So you just have no choice. If you don't believe, then you are not a good Christian. You are not a Christian. Not a Christian. And in the Middle Ages, the punishment was death. Yeah. Because चर्च का इतना प्रभाव था कि चर्च के खिलाफ आप कुछ सोच भी नहीं सकते थे. बात करना तो छोड़ दीजिए. तो इसलिए उन्होंने, जब उन्हें पता चला कि इसकी वजह से हमारा प्रोग्रेस रुक रहा है, जब उनका एज ऑफ रेनेसांस शुरू हो गया और जैसे विज्ञान के कई शोध आने लगे और वो बाइबल के शिक्षा के खिलाफ जाने लगे, तो उन्होंने वो डिवीजन कर दिया कि स्पिरिचुअलिटी जो है या रिलीजन जो है दैट विल बी अंडर द control of the church. And everything else including science, law, governance, everything will be under the control of the king. That means secular control. तो ये करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा जो धर्म है या हमारी जो संस्कृति है उसमें विश्वास रखने की कोई कंपल्शन नहीं. हाँ, बिल्कुल. मतलब आवर ट्रेडिशन टेल्स अस टू बी अ सीकर, नॉट अ बिलीवर. यस. So everybody is free to seek his own path of emancipation. Understand it in their own way. Understand it in their own way. True. अपना खुद का रास्ता आप खुद ढूंढो. बिल्कुल. तो इसलिए हमने ये डिवीजन नहीं किया. तो इसलिए हमारे जो ऋषि थे वो they were philosophers as well as they were scientists. वो तत्वज्ञ और शास्त्रज्ञ दोनों थे. तो फिजिक्स एंड फिलोसफी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, they were going hand in hand. और इसीलिए जो हमने संख्या प्रणाली बनाई 0 to 9, it's such a simple but it's such a beautiful number system that laid the foundation of all the progress in mathematics as well as in other areas. Because संख्या प्रणाली नहीं रहेगी, नंबर्स ही नहीं रहेंगे तो आप आगे कुछ कर भी नहीं सकते हो. और ये जब तक यूरोप में पहुंची नहीं, ये भारतीय संख्या प्रणाली, तब तक यूरोप में रोमन संख्या प्रणाली चलती थी, रोमन नंबर सिस्टम. जी. और रोमन नंबर सिस्टम वाज सो confusing and so difficult to use. एक छोटा सा नंबर लिखने के लिए आपको 10 लेटर्स लिखने पड़ते थे. तो उससे फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सामान्य क्रियाएं भी होती नहीं थी. तो उसके आगे चल के और प्रोग्रेस करना तो इम्पॉसिबल था. तो पूरा विज्ञान का प्रोग्रेस कुंठित हो गया था. तो इसीलिए यूरोप में 500 CE to 1500 CE इज नोन एज डार्क एज. ओके. 1000 ईयर डार्क एज था. उसमें कोई भी नई चीज़ वहाँ पे निकली नहीं. कोई भी विज्ञान में नए शोध आए नहीं, कुछ भी नहीं. सिर्फ चर्च का दमन चल रहा था और उनके कहने के मुताबिक ही लोगों को जीना पड़ता था. तो भारत में ये आधार था स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का आधार था. इसलिए हम शून्य जैसा एक नंबर निकाल सके, क्योंकि शून्यावस्था ये जो कंसेप्ट है
विच इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. तो आज हम जानते हैं इसलिए हमको ध्यान में नहीं आता है, लेकिन आप सोचिए कि शून्य ये संकल्पना करना कितना मुश्किल गया होगा. हाँ. टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज़ कॉल्ड अ शून्यावस्था. तो बिकॉज वी हैड दैट फिलोसॉफी विच गेव अस द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ नथिंगनेस, we could create a number called zero. Oh, so interesting. And because of zero, we could create that number system. Which made it everything so easy. So easy. Like, just by adding 1 0, you can increase it 10 times more. And then there is no end to the numbers that you can create. तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे प्राचीन ऋषियों को इतने बड़े बड़े नंबर्स का ज्ञान था. मतलब दे कुड क्रिएट एंड इमेजिन एंड थिंक ऑफ नंबर्स अप टू इन्फिनिटी. जैसा हमारा जो विश्व का एज कितना है, ये जो हमारी परंपरा जो कंसेप्ट बोलती है, उसमें हमारे यूनिवर्स का एज जो है वो ब्रह्मा का एक दिन और एक रात जी इज अ एज ऑफ वन यूनिवर्स. एंड in terms of years, it comes to 864 crore years. Okay. One day and night of Brahma is 864 crore. तो उनको 864 करोड़ ये संख्या मालूम थी. Okay. उसके बाद अगर ये एक ब्रह्मा का दिन रात है, तो ब्रह्मा का एज होता है 100 years. Which means 311 trillion years. Okay. तो इतना बड़ा नंबर भी हमको मालूम था. Wow. इसके बाद ब्रह्मा मृत्यु हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और नया ब्रह्मा जन्म लेता है. तो दैट मीन्स वी वर टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी एक्चुअली. Whereas compare that with ancient Greece. एंशिएंट ग्रीक लोगों को जो नंबर मालूम था, बड़ा से बड़ा नंबर, इट वाज कॉल्ड एज myriad, MYRIAD, जो आज हम अंग्रेजी में आज भी यूज करते हैं. myriad मीन्स 10,000. So the highest, biggest number known to them was 10,000. So that is the scale of difference in understanding and in the scale of knowledge that we created, and that was available everywhere else in the world. So that is how we were world's biggest knowledge society. Amazing. अब आप 2-3 और उदाहरण देते हाँ देते जाओ सर, बहुत अच्छा लग रहा है. तो दूसरा है, जैसे आप देखिए मेडिसिन और सर्जरी. हाँ जी. तो इसका भी जन्म भारत में हुआ. तो सुश्रुत संहिता जो है वो सर्जरी की किताब है, और चरक संहिता जो है वो मेडिसिन की किताब है. और भारत की विशेषता यह है कि हमारे कोई भी जो ऋषि थे वो ये कभी भी नहीं कहते थे कि ये मैंने खोजा. अच्छा. वो कहते थे कि ये मेरे गुरुओं ने मुझे दिया. उनके गुरु बोलते थे कि हमारे गुरुओं ने हमें दिया. तो हमारे ज्ञान की परंपरा जो है उसका काल पीछे पीछे जाता है. तो चरक ने जो लिखा, सुश्रुत ने जो लिखा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने खोजा. तो उसमें कई सारी सर्जरीज़ का, फॉर एग्जांपल सुश्रुत ने उसमें पूरी प्रक्रिया दी है कि कैसी सर्जरी होती है, उसके इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, वो इक्विपमेंट्स को आपने कैसे क्लीन रखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए. तो बैंडेज के उसने करीब 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस दिए. अच्छा, कुछ प्लास्टिक सर्जरी का भी तो हमारा, वो आपको स्टोरी बताता हूँ. तो प्लास्टिक सर्जरी की कहानी ऐसी है कि पुणे में एक गाड़ी वाला था, और टीपू सुल्तान और अंग्रेज़, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी. तो अंग्रेज़ों को कुछ सामान पहुंचाने के लिए उसकी गाड़ी उन्होंने एंगेज की थी. तो वो गाड़ी लेके गया उधर कुछ पहुंचाने के लिए, दारू गोला होगा या कुछ भी होगा. तो टीपू के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसकी नाक काट के उसको भेज दिया. अच्छा. तो वापस आया, 1 साल तक ऐसे ही रहा. तो पुणे में एक कुम्हार था, पॉटर. तो उसके फैमिली में एक नॉलेज चलते आ रहा था कि इस नाक को कैसे हम ठीक कर सकते हैं. तो उसने उसके ऊपर सर्जरी की. तो उसके यहाँ का जो स्किन था, वो स्किन उसने नीचे खींच लिया और वो स्किन के सहारे उसने उसकी नाक बना ली. अच्छा. और ये जो सर्जरी, ये प्रोसीजर था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर जेम्स फिंडले और दूसरा डॉक्टर स्कॉट करके कोई था. तो उन्होंने ये देखा और इसके ऊपर उन्होंने एक पेपर बनाया और वो मद्रास गैजेट में उन्होंने पब्लिश किया. वहाँ से वो लंदन में प्रकाशित हो गया. वहाँ पे किसी डॉक्टर ने उसको पढ़ा और उसके आधार पे उसने ऐसी सर्जरी लंदन में की और उसने नाम दिया प्लास्टिक सर्जरी. और तब से पूरी दुनिया को ज्ञान हो गया कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है और उससे कैसे हम चेंज कर सकते हैं. ये इसकी कहानी है. अच्छा. और वो कुमार का जो ज्ञान था वो
कहीं से और कहीं से नहीं आया था, सुश्रुत संहिता में उसको पहले से ही लिखा हुआ है। हाँ शायद उसके फैमिली में उसको पहले से वो जानते थे, पढ़ते थे, उन्होंने वो सीख लिया था। जैसे चाइना में 9th सेंचुरी में एक पोएट था लियू युक्सी, ओके तो उसने एक पोएम में लिखा है कि भारत से आए हुए किसी वैद ने उनकी कैटरैक्ट की सर्जरी की और उन्होंने मुझे एक नई दृष्टि दे दी, ऐसा उसने लिखा है। तो कैटरैक्ट सर्जरी भी हम जानते थे। तो सिंधु सरस्वती संस्कृति में कई सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पे डेंटल सर्जरी होती थी, तो अच्छा। दांतों के ऊपर भी शस्त्रक्रिया की जाती थी। उससे भी और आश्चर्यजनक बात ऐसी है कि ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पे ब्रेन की सर्जरी होती थी। अच्छा। और ये कोई नकार नहीं सकता, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये ऐसी वैसी बातें नहीं है, of इसके course. एविडेंसेस है, मतलब देर आर वेरी वेरी क्रेडिबल एविडेंसेस। जैसे एक राजा भोज, आपने नाम सुना हाँ जी, होगा। राजा भोज। तो उनका खुद का एक उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत सरदर्द हो रहा था उनको, तो 2 वैद्य आए, उन्होंने उनके ऊपर ब्रेन की सर्जरी की। तो सम्मोहिनी नाम की कोई वनस्पति के सहारे उनको सुला दिया, फिर सर्जरी की, और फिर संजीवनी नाम की वनस्पति के सहारे उनको जागरूक कर दिया। ये भी उन्होंने लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि मेरा सरदर्द पूरी तरह से गायब हो गया, ठीक हो गया। तो ऐसा जो है, ये जो है मेडिसिन सर्जरी का जो ट्रेडिशन है हमारा, वो इतना ग्लोरियस ट्रेडिशन है। एक और उदाहरण देता हूँ कि हार्ट अटैक जो होता है तो छाती में दर्द होता है जी। और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये दर्द क्यों होता है, ये मृत्यु क्यों होती है, इसका ज्ञान यूरोप को पहली बार हुआ, यूरोप में 1905 में। अच्छा। तो सिर्फ 100-125 साल पहले। और सुश्रुत संहिता में हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत ने जो लिखा है, तो एक रुद्रोगम करके एक उसमें प्रकरण ही लिखा है उन्होंने, और उसमें पूरी तरह से वर्णन किया है कि हार्ट क्या होता है, अच्छा। उसका आकार क्या होता है, ये कहाँ पे स्थित होता है, इसमें रुद्रोग कैसे आता है, उसे मौत क्यों होती है। इसमें आप आज भी कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, इतना प्रिसाइज ज्ञान उन्होंने तभी लिख के रखा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत वॉज इंडियाज फर्स्ट नॉलेज सोसाइटी। और कई सारे हैं, जैसे मेटालर्जी आप ले लीजिए, हाँ जी, या आर्किटेक्चर ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ले लीजिए। जैसा सिंधु सरस्वती संस्कृति में जो सिटीज़ थे, उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो इतना आधुनिक था, स्पेशली वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम वाज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अहेड ऑफ द टाइम। मतलब ऐसी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम तो आज भी ना मिले, सही बात है। कई गाँव में या विलेजेस में आपको नहीं मिलेगी। तो वो उन्होंने तभी बनाई थी। वेरी इंटरेस्टिंग। एक मिस्टर थापर करके एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, मिस्टर थापर, बीके थापर, अच्छा, ओके। तो कालीबंगा नाम का एक एरिया, एक शहर है पुराना, जहाँ पे वो डिगिंग कर रहे थे। तो उनको वो शहर मिला, वो शहर में घर में वो देख रहे थे, तो उनको बहुत बड़ा आश्चर्य का झटका लगा कि यहाँ पे टाइल्स लगे हुए थे। अच्छा। तो बोला 4,500 साल पहले उन घर में वो टाइल्स भी लगाते थे मतलब कितना प्रगत होगा। और फिर उन्होंने थोड़ा सा वहाँ के मिट्टी वगैरह साफ़ की, तो उनको और एक बड़ा झटका लगा। वो बोले कि यहाँ टाइल्स का जो डिज़ाइन है, जो आज भी मेरे घर में जो टाइल्स लगी है, उसी का डिज़ाइन इन टाइल्स के ऊपर है। तो हमारी संस्कृति की कंसिस्टेंसी देखिए आप, कि हज़ारों सालों से हम उसी तरह के घर बना रहे हैं, हम उसी तरह के टाइल्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम पुराने काल में फंसे, ऐसा नहीं है, वो लोग इतने आधुनिक थे। हाँ, सही बात है। आज जिस वो इतने फ्यूचरिस्टिक, इतने एडवांस थे। एग्जैक्टली। वाओ। तो दैट इज द वे इन विच, और ये तो बहुत कम उदाहरण मैंने नहीं, वो तो ऐसे कई सारे, आप कोई भी नॉलेज डिसिप्लिन ले लीजिए, आप मेटलर्जी ले लीजिए, आप फिजिक्स ले लीजिए, आप केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र बहुत प्रगत था। तो ऐसी एनी नॉलेज डिसिप्लिन यू विल फाइंड, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी, वी वर वेरी वेरी अहेड इन एस्ट्रोनॉमी। सर वो तो कुछ मेरे पास कुछ मैं वीडियोस देखता हूँ ना, आई एम आल्सो शॉक्ड कि क्या मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी मतलब थी जो उन्होंने दोनों कोरिलेट करी, कि उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्शंस कर दी। करेक्ट। फॉर द फैक्ट कि जो हमारा न्यू ईयर भी हम जिस तरीके से मनाते हैं, या जो हमारा जो कैलकुलेशंस है एस्ट्रोलॉजी की,
वो इतनी प्रिसाइज है. Absolutely. मैं कभी कभी कुछ सुधांशु त्रिवेदी जी भी कुछ एग्जांपल्स देते हैं और लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार, उन्होंने कैसे कैलकुलेट करी है चीजें. जैसे संडे मंडे अप टू हाँ सैटरडे, जी. ये जो नाम है, ये नाम क्यों है, हाँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हाँ ये सब भारत ने दिया है. जी जी और जी पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया जाता है. बिल्कुल. बट उसका लॉजिक क्या है ये हमने बताया है. हाँ तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं. आप देखें पंचांग हम जिसे बोलते हैं जी 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 कि अल्मैनक, जी वो भारत में हजारों सालों से चलता आ रहा है. जी. तो तभी हमको पता था कि ग्रह और नक्षत्रों का स्थिति क्या होने वाला है. उसके आधार पे हम लिखते थे कि कौन सा मुहूर्त कब आएगा अगले साल. तो ये इसके लिए इतना प्रगत नॉलेज चाहिए एस्ट्रोनॉमी का, जो हमारे पास हुआ करता था. बट सर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज इतने इक्विपमेंट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ऐसे हैवी मशीन्स हैं, तो जाके हम ये सब कर पा रहे हैं या ये कैलकुलेशंस इस तरीके से कर पा रहे हैं. उस समय ये करा कैसे जाता था, मैं तो कभी कभी यही सोचता हूँ. एक्चुअली बहुत डीप ऑब्जर्वेशन करते थे वो लोग, और कुछ हो भी सकता है कि जो आज हमें पता नहीं है. हाँ यस. तो जब तक हमें उसका प्रमाण नहीं मिलता हम बोल नहीं सकते. यही सर, ये जो थ्योरी आती है ना कि क्या सुपर ह्यूमंस थे या क्या करेक्ट, ऐसे एलियन लाइफ थी, ऐसा बहुत सारी चीजें बोली जाती है. ऐसी बोली जाती है, लेकिन एटलीस्ट मेरा तो ये पॉलिसी है कि जब तक ठोस प्रमाण नहीं है तो हम उसको बोलेंगे ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते, बट स्टिल. लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि क्या होता है कि रिजल्ट हमारे सामने है. हाँ तो रिजल्ट क्यों आए ये अभी तक हमें पता नहीं है. बिल्कुल तो हो भी सकता है कि इतने अच्छे रिजल्ट आने के लिए कुछ ना कुछ तो इक्विपमेंट उनके पास होगा. बिल्कुल. कई सारे यंत्र तो थे भी उनके पास, वो हमें आज भी पता है. हाँ लेकिन उसके सहारे इतना प्रोग्रेस वो कैसे करते थे, ये जो लिंक है बीच में का, तो कई जगह वो लिंक मिलता भी नहीं है. हाँ, क्योंकि जमीनी सारी चीजें तो आप बोल सकते हो, लेकिन जब स्पेस की बात आती है ना, Correct. तो लगता है कि यार ये हाउ इज दिस पॉसिबल. करेक्ट. एक शो आता है एंशिएंट एलियंस, मैं पहले देखता था, नैट जियो वगैरह पे आता था, उसमें वो यही बताते थे कि अलग अलग कंट्रीज जाके, तो जैसे वो इजिप्ट गए थे, तो वहाँ पे जब उन्होंने पिरामिड्स का साइज और वो सब देखा और एक एक स्टोन इतना हैवी, तो वो यही बात करते थे कि वो तो उन्होंने क्लियरली बोल ही दिया था कि दिस इज नॉट पॉसिबल टू बी डन बाय एनी ह्यूमंस, ना आसपास ये पत्थर मिलता है. तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. Correct. दैट इज वो तो एक डिफरेंट ही जोन है. वो अलग जोन है. अलग जोन है. Exactly. उसमें कभी कभी घुस जाते हो ना, तो आप मैं तो पागल हो जाता हूँ. मुझे लगता है आई वांट टू just not get into this Actually. because I start dreaming about that and it just gets to you. तो सर अभी आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए, उससे कितनी सारी चीज़ें what all India has given to the world. और ये क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं, what has India given to the world? तो there are so many multiple things. तो उसी में ये जो चीज़ है, ये जो नॉलेज है, ये पहुंची कैसे दुनिया तक, what और कब पहुंची और कैसे पहुंची? ये इसकी कई सारी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. तो आप देखेंगे तो जो सिंधु सरस्वती संस्कृति थी, उसका अंत हुआ करीब करीब 2200 BC टू 1900 BC. ये 300 साल में बहुत बड़ा अकाल हुआ, ड्राउट, एंड दैट civilization ended because the river Saraswati, on the banks of which this civilization was situated, that river became extinct, dried up. और वहाँ से लोग अलग अलग दिशाओं में they shifted, migrated. Many of them came into mainland of India and गंगा की तरफ गए, साउथ की तरफ गए. कई लोग वेस्ट की तरफ भी गए. और हमें ये दिखता है दुनिया के अलग अलग देशों में कि उस वक्त सडनली वहाँ पे नॉलेज पैदा हो गया. अच्छा. तो जैसे आप देखेंगे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो बहुत पुराना सिविलाइजेशन था, उसमें मेडिसिन का नॉलेज ज़्यादा करके वहाँ पे नहीं था. लेकिन इन 1600 BC स्मिथ पैपिरस का जो समय है, जो इजिप्शियन हिस्ट्री के अलग अलग इराज हैं, तो जो पैपिरस डॉक्यूमेंटेशन से वो पता चलते हैं. तो स्मिथ पैपिरस के टाइम 1600 BC के टाइम वहाँ पे सडनली आपको मेडिसिन का नॉलेज अपीयर होता है यूरोप में, इजिप्ट में. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड व्हेन नॉलेज अपीयर सडनली, then it is clear that it has come from outside.
या 100% एकदम से. because evolution of knowledge is a process. Yes. So you should be able to show the Evolution, backward working yeah. or evolution. If you can't show and you find that suddenly it has appeared, that वो means कहीं और it से has आया come from outside. And it coincides or correlates with the disappearance of Saraswati and extinction of this civilization when people migrated to different directions. Oh, so दूसरा एक ऐसा है कि 600 BC to 400 BC, 6th century BC to 4th century BC is supposed to be the period of Greek miracle. Greek miracle. Greek okay. miracle. तो मिराकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड सडनली नॉलेज ऑफ साइंस, फिलोसफी, एवरीथिंग अपीयर्ड इन ग्रीस सडनली अगेन आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज that was the time when Persian emperors like Cyrus the Great, Darius the Great, they were very much interested in knowledge and discussion and all that. So they invited scholars from Bharat. And scholars from Greece to their country, and they had meetings in which they'd like to discuss with these people that what is knowledge, what have you found, what is philosophy. तो ये जब हुआ तो एक नॉलेज कॉरिडोर निर्माण हुआ, भारत, पर्शिया, ग्रीस. और ये नॉलेज कॉरिडोर जब बना तभी ग्रीक में सडनली देयर वाज अ पीरियड ऑफ ग्रीक मिराकल. तो इसका मतलब क्या है? जब भारत के साथ कांटेक्ट हुआ तभी उनको नॉलेज उन तक पहुंचा, फिर उसको उन्होंने भी डेवलप किया होगा. ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि सब हमारे तरफ से लेके गए, लेकिन द सीड्स ऑफ नॉलेज were sown there when they came in contact with Bharat. Wow. Now we come to Europe, which is most important. Yeah. जैसे मैंने आपको बताया कि 500 CE Common Era to 1500 CE there was a dark age. तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था. Absolutely no development of any knowledge. And in 16th century suddenly there came the age of Renaissance. So like a big bang, the knowledge evolved in all fields, including philosophy, including science, including various disciplines of science. तो ये कैसे हुआ हम अगर देखते हैं तो 711, if you remember or if you have read about it, Muhammad bin Qasim, he attacked Sindh. Yeah. That was the first invasion. That was the first invasion of India. Of India. Bharat, yeah. And they occupied Sindh. Yeah. और उसके बाद 750 CE में अब्बासिद खलीफेट जिसे बोलते हैं, जो इराक में बगदाद में स्थापित हो गए, और उनको फिर ज्ञान में भी इंटरेस्ट था. मतलब दैट वाज द ओनली पीरियड ऑफ इस्लाम व्हेन पीपल वर इंटरेस्टेड इन नॉलेज एंड थिंग्स लाइक दैट. तो दे रियलाइज दैट इन इंडिया देयर इज ग्रेट रिजर्वायर ऑफ नॉलेज, बिकॉज सिंध में उनका राज था. तो दे इन्वाइटेड अ स्कॉलर कॉल्ड कनक from Ujjain and some other scholars. उनको they called them to Baghdad. और उनसे उन्होंने आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, इनके ग्रंथ सीखे, उसका ट्रांसलेशन करवाया. तो इंडियन नंबर सिस्टम जो मैं बोलता हूँ, संख्या प्रणाली, वो सबसे पहले तब अरबों के पास पहुँची. अच्छा. और अरबों के थ्रू अरब्स इट वेंट टू यूरोप. तो कैसे गई वो भी मैं आपको बताता हूँ. इसलिए उसको अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं. अच्छा. एक्चुअली दे आर हिंदू न्यूमरल्स और भारतीय न्यूमरल्स, बट द वर्ल्ड नोज देम एज अरेबिक न्यूमरल्स बिकॉज इट वेंट टू यूरोप थ्रू अरब्स. और हम इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं लेते. हमने बोलना चाहिए ना कि हमारा है, बट वी आर सो डीपली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम इसको चैलेंज भी नहीं करते. तो ये अब्बासिद कैलिफेट में पहुंची. उसी वक्त स्पेन में अरबों का राज था. स्पेन वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ अरब्स. तो दिस नॉलेज रीच्ड स्पेन बिकॉज देयर वाज अ स्कॉलर इन बगदाद कॉल्ड अल ख्वारिज़मी. तो उसने ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, इनके ग्रंथों का अध्ययन किया, उसका अरेबिक में ट्रांसलेशन किया. और अरेबिक ग्रंथ जब स्पेन में पहुँचे तो उसका ट्रांसलेशन लैटिन और स्पेनिश में हो गया. अच्छा. तो वहाँ पे उन्होंने टोलेडो स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर्स करके एक ग्रुप ही बना दिया कि जितने भी ग्रंथ आएंगे उनका ट्रांसलेशन करो, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये बहुत अद्भुत ज्ञान नॉलेज बैंक है ये जबरदस्त नॉलेज बैंक है.
तो करते गए, लैटिन में करते गए, स्पेनिश में करते गए, फिर उससे वो अलग अलग यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गई, इटालियन में ट्रांसलेट हो गई. तो फिबोनाची करके एक, एक्चुअली ही वाज अ ट्रेडर हु वाज लिविंग इन अल्जीरिया. तो अल्जीरिया में उसने अरब लैंग्वेज सीख ली. तो उसके पढ़ने में भी ऐसे ग्रंथ आ गए. तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या ज्ञान है. अच्छा. तो उसने उसका ट्रांसलेशन किया लिबर अबाची करके, अच्छा, इटालियन में. ओके. तो इस तरह से वो सब तरफ पहुंच गया, पूरे यूरोप में पहुंच गया. लेकिन उनको जीरो ये कंसेप्ट समझने के लिए करीब करीब 200 साल लगे. अच्छा. क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि जीरो क्या है. क्योंकि उनकी परंपरा में शून्यावस्था का कोई उनको ये कंसेप्ट ही मालूम नहीं थी. एलियन कॉन्सेप्ट थी. तो चर्च ने कई बार उनको फतवे निकाले कि ये इसको आप यूज नहीं करना, बिकॉज ये दिस इज ब्लैक मैजिक. Zero is something. So when you don't understand it, you are scared of it. So they got scared. But first were the traders of Italy who accepted this. Because traders understand their self-interest. Yes. तो उनको ये पता चला कि इतनी अच्छी सिस्टम है कि उनके लिए ईज हो जाएगा, अकाउंटिंग करने के लिए ये बहुत अच्छा है. तो that's why banking started in Europe, in Italy. Italy was the place where banking originated. So interesting. Why did it originate? Because they were the first to accept this zero number system. Oh my God. Wow. So from there, finally, everybody accepted it in the 16th century, all over Europe. And then the age of Renaissance comes. It can't be a coincidence, you know. और आप यूरोप में देखेंगे तो नॉलेज का कोई परंपरा नहीं है. हाँ. जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट है, उसके बाद ब्रह्मगुप्त है, उसके बाद वराहमिहिर है, उसके बाद भास्कराचार्य फर्स्ट, उसके बाद भास्कराचार्य सेकंड, देन केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिशियंस. सो आर्यभट्ट वाज इन 5th century. केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिशियंस वेयर देयर टिल 15th-16th century. तो करीब करीब 1000 साल की एक परंपरा दिखती है कि आर्यभट्ट ने जो काम किया उसके ऊपर फिर ब्रह्मगुप्त ने डेवलपमेंट किया, ब्रह्मगुप्त के ऊपर फिर भास्कराचार्य ने डेवलपमेंट किया, भास्कराचार्य के काम के ऊपर केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिशियंस ने डेवलप किया. तो यू कैन शो दैट lineage of knowledge, which you can't show in Europe. Because Europe it just suddenly appeared out of nowhere. Wow. So that means it has come from outside. And how it has come? It has come like this, through Arabs. Oh wow. So interesting. This entire modern knowledge actually stands on the foundation of Bharat's knowledge. Because we all know that it has evolved in Europe. But how it has evolved on the foundation of knowledge provided by Bharat. यही हमको पता नहीं है. तो इसलिए हम अपनी खुद की पहचान हमें पता नहीं है. बिल्कुल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो यही मैं बोलता हूँ कि जब तक हमको अपनी पहचान नहीं समझती है तब तक हम कॉन्फिडेंस से नहीं उठेंगे. मैं आज ये बताऊँ आपको कि गूगल के CEO इंडियन है जी, फेसबुक के में भी, फेसबुक नहीं है दूसरा, बट सारे इंडियंस ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट के इसके. तो हम बहुत उसमें प्राउड फील करते हैं और करना भी चाहिए. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये कंपनी बनाने वाला आज तक कोई इंडियन नहीं. हाँ, बिल्कुल सही बात है. हम मैनेजर बन सकते हैं लेकिन हम एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन सकते इस लेवल के. आज वो भी प्रोसेस शुरू हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा गैप रहा है, बहुत देर हो चुकी है. इसका कारण ये है कि हमको अपनी खुद की पहचान नहीं मालूम. सर वो माइंडसेट इशू है, वो भी माइंडसेट इशू है. हमको ये लगता है कि हम कॉपीकैट्स हैं. हमारे पास जो कुछ भी अच्छा है हमने वेस्ट से लिया है. ये हमारे जहन में इतना बैठ गया है कि हम इंडिपेंडेंट सोच भी नहीं सकते. जैसे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड चाइना और इंडिया में इतनी गैप है, फिर भी हमारा नंबर अभी बढ़ रहा है. लेकिन गैप इज अनरियल, ह्यूज गैप, बिकॉज वी बिलीव दैट we can't create original thinking or original knowledge. That is implanted in our mind. That's true. वास्तव ये है, फैक्ट ये है कि we are the creators of knowledge. Yes. दुनिया का नॉलेज हमने क्रिएट किया है. बिल्कुल. उससे फिर वो आगे बढ़ा. बिल्कुल. सर आपने नॉलेज की बात करी, इवन इकोनॉमिकली ऑल्सो. प्रिसाइजली. जो क्योंकि अभी आपने ऐसे कंपनीज और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, हम इकोनॉमिकली कितने आगे थे. वो दूसरी बात है, दैट इज अनदर सब्जेक्ट, वेरी बिग सब्जेक्ट, दैट वी वर द वर्ल्ड्स फर्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर. इन 1000 CE
we contributed 35% of world's GDP. In which year? 1000. 1000. 35%. 35%. टुडे अमेरिका कॉन्ट्रीब्यूट्स 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी. तो आज अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है, तो हम उससे भी ज़्यादा 10% तब कंट्रीब्यूट करते थे, तो हम कितनी बड़ी महाशक्ति होंगे, आप समझ सकते हैं. ट्रेडर्स, सब कुछ हम क्या क्या था हमारे यहाँ पे. ये ऐसा है, उसके 3 प्रमुख अंग थे. एक तो एग्रीकल्चर, खेती. हाँ. खेती की शुरुआत भारत में हुई, कृषि की शुरुआत भारत में हुई. यहाँ उत्तर प्रदेश में एक संत कबीर नगर जिला है, वहाँ पे एक लहुरा देवा करके एक तालाब है. तो उसके किनारे ऐसे प्रमाण मिले कि करीब करीब 11,000-12,000 साल पहले वहाँ पे खेती होती थी. अच्छा. 13,000 साल पहले खेती होती थी. श्रीलंका में कई जगह ऐसे प्रमाण मिले कि 17,500 साल पहले वहाँ पे खेती होती थी. और श्रीलंका वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. हाँ जी. बिकॉज ऑफ द आइस एज, द सी लेवल वॉज वेरी लो. And there was a continuous connection between Sri Lanka and India, and Sri Lanka was a part of भारत. तो इतने पुराने काल से हमारे यहाँ खेती होती थी. तो खेती की वजह से बहुत, और जैसे आप देखेंगे कि बड़ी नदियाँ हैं भारत में, तो ज़मीन बहुत उपजाऊ है, तो खेती का प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा था. देन वी वर्शिप काउज, तो डेयरी इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो वेरी वेरी एडवांस्ड देयर. Another important thing is ancient Indians were expert traders. Yes. ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हमारे को ट्रेडिशन है. जैसे आप देखेंगे कि सिंधु सरस्वती संस्कृति के जो लोग थे, वो पूरी दुनिया के जो ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशंस थे, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसके साथ बहुत बड़े लेवल पे उनका ट्रेड चलता था. और पूरी दुनिया में उस वक्त जो वेट्स एंड मेजर्स एक्सेप्ट होते थे, वो भारत के वेट्स एंड मेजर्स एक्सेप्ट होते थे. तो इतना प्रभाव हमारा ट्रेडिंग के ऊपर था. जैसे आज डॉलर एग्जैक्टली. वाओ. तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1 AD और मे बी 100 BC to 200 CE, तो 300 साल आप देखेंगे तो भारत का रोमन एम्पायर के साथ बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड चलता था. बहुत बड़े लेवल पे, मतलब एक एक पोर्ट में करीब करीब 100-150 शिप्स जाते थे भारत से. वाह. और उसमें हम जैसे हीरे है, मोती है, ये सब जैसे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो बेचते थे. टेक्सटाइल्स बेचते थे यहाँ से, स्पाइसेस बेचते थे, मेटल्स बेचते थे. तो ऑल हाई वैल्यू आइटम्स वी यूज्ड टू सेल फ्रॉम हियर, एंड वी यूज्ड टू टेक फ्रॉम देम ओनली गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स. और ये ट्रेड का वॉल्यूम इतना बड़ा था कि देयर केम अ टाइम व्हेन ऑल द स्टॉक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन रोमन एम्पायर एग्जॉस्टेड. उनके पास बचा ही नहीं कुछ, सब इधर आ गया. तो भारत को जो बोलते हैं सोने की चिड़िया, तो ऐसे ही नहीं बोलते. और ये जो सुवर्ण मुद्रा है, जो ये पूरा व्यापार साउथ से चलता था, बिकॉज साउथ इंडिया हैज गॉट पोर्ट्स यार. तो वहाँ से होता था. तो साउथ इंडिया में इतनी सारी रोमन कॉइन्स मिली है कि जो रोम के बाहर मिलने वाली सबसे ज़्यादा संख्या में कॉइन्स भारत में मिली. अच्छा. वाह. और जो आपने चीज़ें बोली सर, जैसे जेम स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, अगर हम देखा जाए तो आज भी इंडिया से ये कितना एक्सपोर्ट हो रहा है. बिल्कुल. तो वो बिल्कुल. हाँ, एग्जैक्टली. और वहाँ पे एक प्लिनी द एल्डर करके एक उनका सेनापति था. अच्छा. तो वो बहुत गुस्से से बोलता था कि हमारी महिलाओं को ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने का शौक है, इसलिए हमको भारत में इतना सोना भेजना पड़ता है. क्योंकि ढाका का मलमल जो होता है, तो इतना स्मूथ और इतना ब्यूटीफुल होता था कि it ruled the fashion scene in the world. Wow. At that time. Amazing. और even there was a emperor called Caligula. उसकी जो वाइफ थी लोलिता या लोलिना, ऐसा कुछ नाम था उसका. तो she used to wear the ornaments made out of Indian precious stones. She was so fond of it कि वो बाल से लेके पाँव तक वही पहनती थी पूरा. और like ladies there were crazy about Indian textiles and things from India. Wow. तो he used to describe India as a sink of precious metals. तो बोलता था कि जैसे सिंक में हम पानी डाल देते हैं, उसी तरह हमको ये सब सोना जो है, सोना चांदी भारत में देना पड़ रहा है. तो that kind of impact was there. There was an emperor called Vespasian. उसने कई सालों तक ये ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगा दी थी.
लेकिन उनके लिए भी इतना महत्वपूर्ण था कि उसको बैन हटाना पड़ा और उसको वापस करना ही पड़ा, वापस चालू करना पड़ा. तो ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर. देयर वर गिल्ड्स ऑफ ट्रेडर्स, मतलब जैसे आज की कॉर्पोरेट कंपनी है उसी तरह ट्रेडर्स एक साथ मिलके साथ में ट्रेड करते थे. तो दे यूज्ड टू कंट्रोल ट्रेड्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. तो इतने पावरफुल हो चुके थे वो लोग. अभी जो शिप की आप बात करें ना, साउथ से हमारे पोर्ट्स ऑफ कोर्स वहाँ पे थे, तो अभी वो एक अभी मोदी जी ने भी उसकी डाली थी फोटो, संजीव सान्याल जी ने जो शिप बनाई है, जी. जो एंशिएंट शिप पहले चलती थी ट्रेड की, बिकॉज वो कहते हैं कि आई वांट टू शो टू द वर्ल्ड कि हाउ वी यूज्ड टू डू. दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. या एंड सर अभी आपने बात करी ना कि हाँ बोलो. वन पॉइंट वी हैव मिस्ड. या So I started with agriculture, then I spoke about trade, and there was a third element which was production. Yeah. जैसे you spoke about dairy also. We spoke about agriculture, trade. dairy, trade, and now production. Yeah. Indian steel was supposed to be the best in the world. Oh. So we used to make steel in small furnaces. Okay. Thousands of such furnaces were there in India. भारत में जगह जगह पे ऐसे furnaces थे. अच्छा. एक जगह 9 लोग सिर्फ काम करते थे. अच्छा. बहुत छोटे लेवल पे, बट वर्ल्ड्स बेस्ट स्टील जिसे वुड स्टील बोलते थे. और दमास्कस वोट तभी बहुत प्रसिद्ध था कि सब जो योद्धा हैं उनको वो दमास्कस की तलवार चाहिए होती थी. अच्छा. और वो बनाने के लिए जो स्टील फौलाद यूज करते थे वो केवल भारत से आता था. सो द बेस्ट स्टील इन द वर्ल्ड, बेस्ट टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड. वाओ. और ये जो हम आज जिन्हें शूद्र जातियों में मानते हैं वो लोग उस वक्त के उद्योजक थे. अच्छा. तो जैसे लोहार हम जिसे बोलते हैं, तो दे यूज्ड टू मेक स्टील. ओके. तो दे वेर द एंटरप्रेन्योर्स और द इंडस्ट्रियलिस्ट who used to make steel at that time. The weavers used to make textiles. Yeah. So they used to rule that market all over the world, not just in amazing India. Amazing. And finally, for all this, what you require is money. तो बिजनेस जो है बैंकिंग के ऊपर चलता है. तो बैंकिंग कहाँ से आता था? तो हमारे जो टेम्पल्स थे, दे वर द बैंक्स. तो हम जो सोचते हैं कि इतना पैसा क्यों होता था उनके पास, ये आके सोमनाथ का मंदिर उसने लूटा तो इतना जबरदस्त संपत्ति उसको धन मिला. तो बिकॉज दे वर द बैंक्स. टेम्पल्स वेर द एपी सेंटर ऑफ एवरी टाउन. तो इट वॉज नॉट जस्ट अ रिलीजियस सेंटर, इट वॉज अ कल्चरल सेंटर. तो डांस, म्यूजिक, ये सब वहीं पे चलता था. उसके बाद बैंकिंग वहाँ से होता था. तो देर आर मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर फाउंड विच आर ट्राईपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन ट्रेडर्स गिल्ड्स, देन दीज एंटरप्रेन्योर्स and banks, groups of entrepreneurs and banks. So they used to have tripartite contracts कि हम पैसा दे रहे तो ट्रेडर्स जाके इसको बेचेंगे, फिर ये उद्योजकों को देंगे, उद्योजक बैंक को मंदिर को वापस करेंगे. जो भी है, मतलब उनका जो भी एग्रीमेंट होता था. तो वी हैड अ कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम. एग्जैक्टली, फुल इकोसिस्टम था. ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वर देयर. उसको फाइनेंस करने के लिए बैंकिंग वाज देयर. अमेजिंग. एंड दैट्स व्हाई वी वर वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर हाउस. सो इंटरेस्टिंग सर. दैट इज आवर आइडेंटिटी. ये तो ऐसे मोटिवेट हो जाए कोई ये सुन के. जैसे आपने क्या, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था सर, आपने जो पॉइंट बोला ना कि व्हाई वी are working only as say CEOs, why don't we start? Exactly. Why are we not entrepreneurs? Exactly. Because as you said, we are not, all these things are not ingrained in our upbringing. Correct. That we are like this. Correct. Neither our parents nor grandparents, ये तो हमें कितने सालों से ही नहीं सिखाया जा रहा ना. जैसा मैंने बताया ना, 200 साल से चल रहा है. हाँ, तो कितना बड़ा गैप आ गया. Exactly. अब अगर ये स्कूल में आज पढ़ाना शुरू करे, मैं तो कहता हूँ आपकी ये किताब ही पढ़ा दे. मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल व्हाट ऑल यू आर सेइंग. व्हाई नॉट? इफ थिंग्स कैन बी टेकन आउट एंड with references, exactly, and be taught in our schools, kids would come out so much more motivated that, correct, you know, they can say to the West ki very proudly कि we created all of this. मैं तो बोलता हूँ कि किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बताना चाहिए. पहले तो अपने आप को बताओ, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा. Exactly. सही बात है. नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग सर. एक चीज मैं ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतनी
नॉलेज रिटेन कैसे करते हो, और आप ये किताब लिखते समय कहाँ से सारी सर्चेस करते हो? सोर्सेज तो ढूंढने पड़ते हैं कि जैसे क्या होता है, अपना एक हाइपोथेसिस होता है, तो फर्स्ट यू हैव टू स्ट्रक्चर योर हाइपोथेसिस. देन माय हाइपोथेसिस वाज दैट भारत हैज लॉस्ट इट्स रियल आइडेंटिटी. इट हैज बीन स्नैच्ड फ्रॉम अस. So then what is our real identity that we have to find out? So then you have to first figure out the broader areas. That knowledge is one area, economics is one area, then universal human values is another area, language and culture and civilization is another area. And then under each head you have to dig deep for sources, for credible, reliable sources. Then you have to pick up facts from there, and then you have to create a complete narrative. So that is how you have to go And how through do you it. retain so much knowledge? Actually what happens is when you are genuinely interested in something, तो अपने आप retain हो जाता है. नहीं, but जैसे आप you remember the sources and everything, so it's not easy to know. I know. That is purely out of passion and interest. Like आपका जो favorite subject होगा, अगर आप सचिन तेंदुलकर के fan हो, तो उसकी पूरी सेंचुरीज भी आपको याद हो जाती है. ट्रू. उसके लिए आपको कोई पढ़ना नहीं पड़ता है, उसको रटना नहीं पड़ता है. लेकिन जैसा मेरे बारे में यही है कि मुझे इसमें इतनी रुचि है कि मुझे अपने आप याद आ जाता है. और कई बाकी चीजें मैं 5 मिनट भी याद नहीं रख सकता हूँ. तो ऐसी बात है. You have been a marketer as well. मतलब आप ब्रांडिंग वगैरह you have done ना? जी. तो I think कि India also needs to become a good marketer of definitely what all you said it. We have done. I think we have to market it the right way. 100%. Whether even in our business, marble, we sell marble. We look at other countries. The only reason their prices are so high is because the way they have marketed their products. Precisely. We can do the same with the stones that are coming out of India as well and charge what we want. Actually जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, उसको भी केवल बड़ा प्राइस देके लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस अच्छा है, बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू होगी. बिल्कुल. दैट इज कॉल्ड एज वेबलेन इफेक्ट. यस. तो हमारे पास तो वैल्यू का भंडार है. सही बात. तो हम क्यों नहीं अपने आप की प्राइस बढ़ा सकते? सही बात है. नहीं बिल्कुल सर. एंड बहुत अच्छा आपके साथ एक और पॉडकास्ट हुआ. इतने सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई. आई एम श्योर whoever's going to watch this is going to be very interested in these conversations, and I'm so happy ki people like you are doing so much research to bring out Bharat's history and teach kids like us why we should be proud of our country and what all we have given to the world, and learn these things. So you're doing God's work. Thank you so much. No. क्योंकि कई लोगों ने 2 शतकों से हमारी पहचान विकृत कर दी है, तो उसको सुधारना ये तो हमारा ही दायित्व बनता है. तो हमको ही करना चाहिए, और कौन करेगा? बिल्कुल. खुद का जो खुद की जिम्मेदारी है अपने आप को निभानी पड़ेगी. नहीं, बिल्कुल सर. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. इन द नियर फ्यूचर. एंड किताबें लिखते रहिए और हमारे साथ आके डिस्कस करते रहिए. तो अगला पॉडकास्ट कब करना है? जब आपकी अगली किताब आएगी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन. थैंक यू.